Hi guys, this is Sanjeev and I welcome you to the classic journey of mathematics, specifically high school mathematics. In this series, for CBSE Standard 10, we have got one chapter, chapter 6, that is triangle, and I have divided this triangle chapter into 6 different parts. Today we are going to study the part 6, Pythagoras theorem, RHS criteria of similarity, and few examples to utilize these two facts. Let us start one by one. You know it. You know Pythagoras theorem. You have been using since last 2 years. But every time you were told the theorem will be proved in higher class. Now this is the time you are literally proving it. Theorem 6.8 Pythagoras theorem states, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Means we have been given a right angle triangle. Here the right angle is at B. ABC triangle is given and B is right angle. This is only given. And what we need to prove? We need to prove AC square is equal to AB square plus BC square. Theoretically, hypotenuse square is equal to base square plus height square. To prove this, we need one construction, and that is we need to draw a perpendicular from the right angle B on hypotenuse AC. This is done to make use of theorem 6.7, and 6.7 you can address that particular theorem in checking the I button. I have given the link for that theorem. I have discussed in previous video and we will be using it. Let us go for the proof. ADB triangle is similar to ABC. In this 6.7 theorem, we have come across to such a situation where a right angle triangle and a hypotenuse is fitted with one altitude from the opposite side, that is 90 degree. So we will be getting three triangles and three are similar to each other. Now the first one, from this particular figure we need only two triangles to be taken at once. Considering two triangle at once, that is a bigger triangle and the left hand side of the altitude, that is ABD triangle. Those two are similar and this will give us the side proportionality. AD by AB equals to AB by AC. And on cross multiplication, we get AD into AC equals to AB into AB or AB square. This is equation 2. Similarly, we will be considering two more triangle, that is the bigger triangle and the right hand side of the altitude BD, that is BCD triangle. Same theorem 6.7, and from that particular theorem we can conclude side proportionality CD by BC equals BC by AC, and on cross multiplication we get CD into AC is equal to BC into BC and it is nothing but BC square. That is equation 4. Now if you observe minutely, equation 2 and equation 4 has got two area which is required to be proven. AB square is in equation 2, BC square is in equation 4. Let us add it because to be proved में क्या है, AB square plus BC square को AC square प्रूव करना है या उल्टा. तो AB square मिला आपको इक्वेशन 2 में, BC square मिला इक्वेशन 4 में. जोड़ते हैं उन दोनों को. जोड़ने से क्या मिलेगा, RHS को RHS के साथ में जोड़ेंगे, LHS को LHS में साथ में जोड़ेंगे तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अभी LHS में देखिए AC कॉमन है, कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर AD प्लस CD रहेगी. और थोड़ा फिगर में झांक के देखिए, AD प्लस CD क्या है, AD एंड CD आर पार्ट ऑफ AC और यू कैन से AD प्लस CD इज इक्वल टू AC. तो हम AD प्लस CD की जगह में अगर AC लिखते हैं तो हमें मिलता है AC इंटू AC एंड दैट इज नथिंग बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. टू बी प्रूव्ड में देखिए आपको यही चीज प्रूव करनी थी.
ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस गो फॉर एन एग्जांपल, we will be implementing this. A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. This is a typical situation and there are two things you need to follow. First, you should be assuming that the wall is always form 90 degree with the ground. एक अगर वॉल अगर मैं देखूं, एक फोटो दिया है, देखिए एक वॉल है, ग्राउंड के ऊपर लंबा सा एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये दीवार और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होता है और वहां वो वॉल में एक प्लेस किया गया है लैडर, सीढ़ी। अगर ये सीढ़ी वॉल और ग्राउंड को थोड़ा सा माइन्यूटली देखें तो वी विल बी गेटिंग वन ट्राइंगल ओवर हियर। The triangle starts from the joining point of the wall with the ground, that is 90 degree. It goes upward in the wall till the point of joining of the ladder, that is height, and it goes on the ground till the point where the ladder joins the ground. So we will be considering this as a scope of right angle triangle. ABC will be right angle triangle. और हमें क्या डाटा दिया है? AB 6 मीटर, AB क्या है? वो विंडो तक का वॉल, वो जहां टच करता है आपका लैडर, ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर दिया है एंड BC 2.5, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फुट ऑफ द वॉल टू फुट ऑफ द लैडर। और हमें इन्फरेंस क्या लेनी है? ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ABC 90 डिग्री कहीं दिया नहीं है, एज्यूम करना है। ABC 90 डिग्री होगा, वॉल तो सीधी खड़ी रहती है ना, तो ये एज्यूम करना है आपको, ठीक है। टू बी शोन में क्या चाहिए हमें? लेंथ ऑफ द लैडर, दैट इज AC। तो डायरेक्टली यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। मेजर ऑफ AC निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा और पाइथागोरस थ्योरम 6.8 थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल रूट ओवर। और AB BC का आपको वैल्यू पता है, मेजरमेंट पता है, तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। छोटे नंबर के लिए, स्क्वायर के लिए कोई दिक्कत नहीं। जहां थोड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तो आप लोग को वो पेन एंड पेपर यूटिलाइज करना पड़ता है। मैंने एक लिंक दिया है आई बटन में, चेक कर लो आप। वहां मैंने स्क्वायरिंग कैसे इजीली कर सकते हैं मैंने बताया है। लेस देन हाफ ए मिनट में आप स्क्वायरिंग कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर पेन, विदाउट यूजिंग योर पेपर। रफ वर्क जरूरत नहीं है। कब से कब तक का? 0 से लेकर 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर आपको मैंने बताया है। 10 मिनट का वीडियो है, थोड़ा देख लो आप। तो अभी यहाँ आते हैं 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 2.5 इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। ऐड करते हैं 4225 एंड उसका स्क्वायर रूट होगा 6.5 एंड मीटर। यहाँ आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू ऑल, whenever you are going any sort of computation calculation, do not try to infringe all those SI unit during the calculation। 6 के साथ में 6 सेंटीमीटर, 2.5 के साथ में 2.5 सेंटीमीटर नहीं लिखो आप। फाइनली एंड पॉइंट में जो उस लाइन का रिजल्टेंट लाइन आता है, जहां यहां आया है 6.5, वहां आप लिख लो। लेकिन 6 2.5 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखो। 36 मीटर स्क्वायर 6.5 मीटर स्क्वायर नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ यही हमको निकालना था। लेडर का मेजर क्या है? लेडर हमने जाना 6.5 मीटर का लेडर है। सीढ़ी जो है उसका डिस्टेंस, उसका मेजर है 6.5 मीटर, ठीक है। चलिए इसका एक और हिस्सा देखते हैं, RHS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ये कहीं सिमिलरिटी का थ्योरम में नहीं दिया है, लेकिन आप एज्यूम करोगे। कैसे? ये डिडक्शन टू पाइथागोरस थ्योरम होगा।
ये RHS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, R का मतलब क्या, राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस एंड S का मतलब एनी साइड। ये हमने ये RHS क्राइटेरियन को हमने स्टडी किया था कॉन्ग्रुएंसी में लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में। लेकिन 10th में आपको एडवाइस कर रहा हूं, RHS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी आप यूज कर सकते हो। रीजन इज दैट अगर इन टू राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ABC एंड DEF, अगर दो साइड corresponding hypotenuse and one side are proportional, then हम इन्फर कर सकते हैं उसका तीसरा साइड क्या होगा। ये वन साइड हाइट भी हो सकती है या बेस भी हो सकती है। इन बोथ द केसेस दैट साइड वुड बी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। तो मान लो यहां दिया क्या गया है, AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF दिया है। AC विल बी ऑब्वियसली, अगर B 90 डिग्री होगा तो AC हाइपोटेनस होगा, DF हाइपोटेनस होगा, E 90 डिग्री वहां है। उसका एक साइड BC मैंने लिया है, वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तीसरा साइड क्या होगा, AC DF दोनों जाने के बाद में एक बस, AC BC दोनों जाने के बाद में AB बचता है, और DF EF दोनों जाने के बाद में DE बचता है। तो ये हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल पा रहे हैं तो हम ये भी निकाल पाएंगे। अदर सेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये दोनों साइड जो हमने निकाले फ्रॉम विच एरिया, फ्रॉम गिवन एरिया। AC हमें दिया हुआ है, BC हमें दिया हुआ है, DF EF ये प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से दिया हुआ है। और इसी को हम अगर आगे बढ़ाएंगे, दिस मीन्स इन द ट्राइंगल ABC एंड DEF ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी अगर यूज करें तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, दिस इज एन डिडक्शन, दिस इज ए वेरी गुड डिडक्शन। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन यूटिलाइज RHS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी एज यू हैव बीन डूइंग RHS क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, दूसरा थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। थ्योरम 6.9, दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.8। कन्वर्स का मतलब उल्टा। यहां क्या दिया है, यहां आपको बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर दिया है। अब ये हाइपोटेनस वर्ड तभी यूज आएगी जब आपको पता होगा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पता नहीं, आपको वही पता करनी है, आपको प्रूव करनी है ऑपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो यहाँ आपको साइड के हिसाब से पता करना है, बेस हाइट और हाइपोटेनस आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। In a triangle, if square of one side is equal to sum of the squares of other two sides, means ये one side जो है ये hypotenuse expected है, is sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle। उल्टा चीज, ठीक है। यहाँ डेटा दिया है ABC ट्राइंगल है, और यहाँ दिया है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको प्रूव करनी है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। एक DEF ट्राइंगल बनाएंगे, उसके लुक अलाइक इमेज क्लोनिंग करके ABC का थोड़ा सा हम इनपुट लेंगे। DEF ट्राइंगल में यहां DE शुड बी इक्वल टू AB एंश्योर करेंगे, EF शुड बी इक्वल टू BC एंश्योर करेंगे, और तीसरा चीज हम अपने हिसाब से करेंगे, एंगल E को 90 डिग्री करेंगे। ये हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल को लेते हैं प्रूफ में। पहले DEF ट्राइंगल में DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। हाउ, यूजिंग 6.8, क्योंकि 90 डिग्री हमारा डिक्लेरेशन में ऑलरेडी है, कंस्ट्रक्शन में हमने 90 डिग्री एंश्योर किया है, तो 6.8 यहां यूज कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वेशन 1। अच्छा, ये DE क्या है, DE हमने कंस्ट्रक्शन में किया AB, and what is BC, what is EF, we have already constructed EF should be equal to BC, so we will be replacing DE and EF with AB and BC, and that is our equation 2. And data given, what is given, AC square is equal to AB square plus BC square. This is equation 3. Now in equation 2 and equation 3 we have seen RHS is same, so what can we infer, we can conclude DF square is equal to AC square, and square rooting both the sides we will get DF is equal to AC.
and this is our equation 4. Now, in this two triangle, we have constructed two things. AB is equal to DE, BC is equal to EF. In equation 4, we have proved DF is equal to AC. That is side 1, side 2 and side 3. So, these two triangles are congruent. ABC triangle is congruent to triangle DEF. And CPCT क्या कहेगा? CPCT corresponding angle should be equal, and here the corresponding angle B equals to DE. और E हमने कितना लिया? कंस्ट्रक्शन में हमने 90 डिग्री एंश्योर किया है, तो एंगल B इज 90 डिग्री। प्रूव हो गया। इसके यूज हम देखेंगे एग्जाम्पल में। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle. ABC हमें ट्राइंगल दिया है जहां हमें कहा गया है AC is equal to BC, और हमें यह भी दिया है AB square is equal to 2AC square. आपको प्रूव करना है ये ट्राइंगल आइसोसेल ट्राइंगल, और ये आइसोसेल ट्राइंगल दिया है, आपको प्रूव करना है ये ABC ट्राइंगल राइट एंगल है। ठीक है, चलिए प्रूव करने के लिए हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे इन ABC राइट ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है। अच्छा, ये 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमें ये पता है AC इज इक्वल टू BC, तो डाटा गिवन के हिसाब से हम AC की जगह में BC लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब AB का अपोजिट में जो साइड है, जो एंगल है, दैट इज AB साइड के अपोजिट में, फिगर देखने से आपको पता चलेगा ये C है, तो ACB angle would be 90 degree, and this is nothing but on a concluding point of using converse of Pythagoras theorem, that is theorem 6.9, and that's our proof. With this we conclude the chapter. I hope you like the video. Do share with your friends and subscribe to my channel so that you won't miss any future video. You will be notified when I am uploading a video. The next chapter will be trigonometry, a special and extraordinary journey, and then something else like circle will be studied to you, and we will be again going to MCQ and MCQ, because in November the board one will be there and you will be asked MCQ 40 questions in 90 minutes. Be ready for that, and I hope you will be by my side in my next videos. Thank you very much. Have a nice time and do take very good care of yourself. Bye bye.